লেটার হেডের চিঠি দরকার হলো না। ফার্স্ট টাইম বিধায়ক হয়ে যেমন অনারেবল শাসক দলের আমাদের বিধানসভার কাস্টোডিয়ান আমাদের স্পিকার সাহেব হয়েছেন, তেমনি ফার্স্ট টাইম বিধায়ক হয়ে সন্দীপন সাহা, ঋতব্রত, তারা কেউ লিডার, কেউ ডেপুটি লিডার হয়ে গেছে। আমি ওই জন্য বলেছিলাম মমতা ব্যানার্জি যদি আসতে চাই, আমার তো 81,000 ভোটে তৃণমূলকে হারিয়েছি, আর 59,000 ভোটে বিজেপিকে হারিয়েছি। কংগ্রেস 4,000 ভোট পেয়েছে, বিজেপি আপনার 64,000 ভোট পেয়েছে, আর তৃণমূল 41,000 ভোট পেয়েছে, আর আমি 1,23,800 ভোট পেয়েছি। রেজিনগরে আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, রেজিনগরে শেষ কথা বলবে সব পার্টি যদি এক হয় তাও আমি ওখানে জিতব। তাই বলেছি মমতা ব্যানার্জি যদি বিধানসভায় আসতে চায়, ওনার প্রতীকেই লড়ুক। আমাকে বলতে হবে যে আমার যারা কাছের ছিল, যাদের আমরা দুধ কলা খাইয়ে মানুষ করেছিলাম, তারা আমাকে লাত মেরে চলে গেছে, তো আমি তোমার কাছে এই সিটটা চাইছি। তা আমি বলছি আমার ছেলেকে আমি দাঁড় করাবো না, ওনাকে ছেড়ে দেবো। আগেও বলেছি, আবার বলছি। আর যদি বাইরে কোথাও লড়ে আপনি সাপোর্ট দেবেন? না, বসিরহাটে যদি কোথাও লড়ে, হ্যাঁ, বসিরহাটে যদি লোকসভায় লড়ে ওনার এগেনস্টে আমি প্রার্থী দেবো না, আর অন্য কেউ লড়লে আমি প্রার্থী দেবো আমার দলে। কিন্তু উনি দাঁড়ালে পরে আপনি প্রার্থী দেবেন? নিশ্চয়ই। মানে ওনার হয়ে কি প্রচারে যাবেন? উনি ডাকলে যাব। উনি তো বলেন না মাঝে মাঝে একাই 100, তো আমাদের মতো ক্ষুদ্র লোককে প্রয়োজন হবে কিনা সেটা তো ওনাকে ঠিক করতে হবে, আমি তো ঠিক করবো না। কিন্তু এখন কি উনি আর একাই 100 বলার জায়গাতে আছেন? সেটা তো মনে হচ্ছে না, কিন্তু বিধানসভার ভেতরে আপনারা দেখেছেন, গ্যালারিতে ছিলেন, আমাদেরকে যখন এই বর্তমান শাসক দল যখন বিরোধী আসনে ছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কথা না শুনে চোর চোর স্লোগান দিচ্ছিল, তখন আমরা ওয়েলে নেমে আমি বিনা কারণে চোর শুনবো না বলে প্রতিবাদ করতে গেছিলাম। আমার নাম ধরে বিধানসভায় কোনো রেকর্ডে আছে, এই হুমায়ুন চুপো আমি একাই 100। এইসব ভুলভ্রান্তি করেছিল বলে তো আজকে যাদের আগেই বললাম, যাদের এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদেরকে আপনার দুধকলা দিয়ে জাবেদ খান, শিউলি সাহা, আকরুজ্জামান, যাদেরকে মন্ত্রী সবাই রেখেছিল, আজকে তারা কোথায়? উনি এবার ভাবুন যে ওনার কাছের কে, আর ওনার দলের ভালো কে চায়, ওনার নেতৃত্বকে কে সম্মান দেয় বা দিয়েছে, আর আজকের দিনে ওনার কি পরিণত হয়েছে। কাজেই আমি তো ওপেন বলেছি, ওনাকে যদি আমাকে বলে তাহলে আমি আমার ছেলেকে না দাঁড় করিয়ে ওনার যে कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा, उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है, क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिए क्योंकि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं अच्छे काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छे काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वजह क्या रही? ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया। तो ये तो काम जो था, जो पब्लिक चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छे काम करें, वो करने के लिए सेंट्रल का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को शायद कभी ऐसा लगा था कि दीदी के साथ रहते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारी जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि
एक दो महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में, कि इतनी तेज गति से काम चल रही तो है। कहा यह जा रहा है कि आप लोग जो सिर्फ जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से दीदी को छोड़ दिया, क्योंकि दीदी को देखिए, दीदी तो हमेशा रिस्पेक्टेबल लेडी है, वो हमेशा रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे, पर हम लोगों को जो वोट देके चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसीलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे, विधानसभा में जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे और जाके सबको हाथ हिलाते रहेंगे, भाई हम आए हैं, हम फिल्म स्टार हैं, हम आए हैं और हम निकल जाएंगे, ये तो नहीं है ना। हम लोग को काम करना पड़ेगा, लोगों के पास खड़े रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इतने दिनों से। वो डेवलपमेंट होना है, और वो डेवलपमेंट कैसा होगा वो अभी शुभेंदु मैम आपको लगता है कि आपका मर्जर हो जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से चैलेंज किया गया आप लोगों के मर्जर को लेकर के? देखिए, आगे तो देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, आगे में सब कुछ जो होगा वो सब अच्छे के लिए ही होगा। अच्छा काम स्टार्ट हो गया है और अभी अच्छे सुनना है, अच्छा बोलना है और अच्छा देखना है। आप चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस आप लोगों के पास ही रहे, यानी कि आप लोग जीत के तृणमूल कांग्रेस से आए थे, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए वो हम अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि आगे चलते हुए हम लोग को देखेंगे हम लोग को क्या क्या होना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, अभिषेक बनर्जी को लेकर के काफी सारे आपके जो बीच के लोग ही बोल रहे हैं कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चल रही थी, दीदी की नहीं चल पा रही थी, आपका क्या मानना है? देखिए, हम दीदी को जानते हैं, दीदी की वजह से ही हम आज यहाँ पे आए हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में दीदी बोल सकती है क्योंकि वो उनके भांजे हैं। लोकसभा में आई थी लोकसभा। जी, मुझे एक पेपर साइन करना था, हमारे जो 20 सांसद हैं उनका सबका साइन हो गया था और मैं यहाँ पे आई थी साइन करने। मैम मर्जर को लेकर के सवाल उठ रहा है कि मर्जर कैसे होगा, इसको लेकर देखिए वो आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। हम लोग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो टाइम आने से जरूर आप लोग सबको पता चल जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तृणमूल गुट की जो बागी सांसद थे रचना बनर्जी भी संसद भवन पहुंची हैं। मैम, यहाँ पर आप लोग संसद भवन आए थे, आप क्यों आए थे? मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई थी। कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा, उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिए क्योंकि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं अच्छी काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छी काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वजह क्या रही? ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया। तो ये तो काम जो था, जो पब्लिक चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छे काम करें, वो करने के लिए सेंट्रल का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को शायद कभी ऐसा लगा था कि दीदी के साथ रहते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारी जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में, कि इतनी तेज गति से काम चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि आप लोग सिर्फ जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से दीदी को छोड़ दिया, क्योंकि दीदी को देखिए, दीदी तो हमेशा रिस्पेक्टेबल लेडी है, वो हमेशा रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे, पर हम लोगों को जो वोट देके
चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे विधानसभा में